Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all of you. Hope you all fine and having good health. We start today's session of instrumentation and measurement, lecture number 1. And we start today's session with some verses of Holy Quran. So we start today's session with lecture number 1, that is instrumentation and measurement course. Further, this lecture I got by Engineer Muhammad Adil and modified by myself, Engineer Adil Khan. Further, the lecture can be explained as self-explanatory lecture, that is the instrumentation and measurement, the kind of devices which is used to get the measurement phenomena by the instrument. You can see these are the smart devices which fulfill the kind of requirement. Further, the major thing regarding the introduction. So, introduction of measurement is a technique to have been immense importance ever since the start of human civilization. इंस्ट्रूमेंटेशन का जो आगाज हुआ है वो बेसिक सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ है और इसमें हम मेजरमेंट बहुत सारी चीजों में करते थे. मेजरमेंट वो फर्स्ट नीड टू रेगुलेट the transfer of goods to ensure that exchanges were fair. और ये चीज जो गुड्स के एवज करते थे हम, चीजों के एवज, वो मेजरमेंट उनकी चीजों पे की जाती कि कोई एक प्रोडक्ट हम किसी के एवज ले लेते थे और उसके एवज उतने वजन में उतनी चीज के एवज वो तजारत की जाती थी. The Industrial Revolution during the 19th century brought about rapid development of new instruments and measurement techniques to satisfy the needs of industrialized प्रोडक्शन एंड टेक्निक्स. फर्दर ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ता गया और उसके नतीजे में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बहुत सारे मामला तय होते गए, जिसके नतीजे में जो फिनोमेना है लेंथ मास टाइम के, करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, इन सबको मेजरमेंट करने के मुख्तलिफ डिवाइसेस, टेक्निक्स और फिनोमेना ड्राइव होते गए, इवॉल्व होते गए मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और प्रोडक्शन के नतीजे में. The massive growth in the application of computers to industrial process control and monitor tasks have upward with parallel growth in the requirement for instruments to measure, record and control process variables further. अब industrial sorry for the interruption. We further continue the session regarding lecture number 1, and that is the instrumentation and measurement of Engineer Adil Khan. Further, I was discussed about the introduction of measurement, further techniques of measurement, starting to ending of scenarios by which we can record, control, and monitor the scenario of different mediums. So further, we continue the session with the measurement units. The very first measurement unit were those used in barter trade to the quantity of amount being exchanged. पहले के ज़माने में हम होते ये थे कि चीज़ों के एवज दीगर चीज़ों को उनकी तजारत करते थे और उनको तब्दील किया करते थे कि ये चीज़ इसके बराबर है, ये इतने माशे के बराबर है. तो ये चीज़ पहले के ज़माने में चला करती थी. Establish clear rules about the relative
वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, मुख्तलिफ तरह की कमोडिटीज के एवज हम ये काम करा करते थे, ये भी सेम ऑफ द एस्पेक्ट्स है। फॉर पर्पसेस ऑफ मेजरमेंट लेंथ द ह्यूमन torso was the convenient tool and gave us the units of the hand. These techniques were imprecise and inaccurate. अब इसके नतीजे में हम एक्सचेंज करना या चीज़ों को तब्दील करना ये एक्यूरेट वे में नहीं थी बल्कि इनएक्यूरेट वे में थी। इनमें पैमाइश का जो पैमाना हुआ करता था वो दुरुस्त नहीं था, और जो वजन के लिहाज से चीज़ों का एक्सचेंज था वो भी दुरुस्त नहीं था। अब एक चीज़ ज़्यादा हो एक चीज़ कम हो, अब वो बिल्कुल भी गुड्स के एवज गुड्स जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त तरीका नहीं था। ये करेंसी का जो निज़ाम था ये बाद में राइज हुआ है, लेकिन इससे पहले हम चीज़ों के एवज दीगर चीज़ों की तिजारत या तब्दीली करते थे। द फर्स्ट improved measurement unit was a unit of length which is measured in meter, defined as the 10 to power -7 times the polar quadrant of Earth. Recently, the meter was redefined again as the length of path travel by light in an interval of 1 by 3 10 to power 8 per second. That particularly, it's traveling of length defined by the length. The latest standards for defining the units used for measuring a range of physical variables are given in the following table. अब इस तरह के जो टेबल आपने बेसिक क्लासेस में भी डिस्कस किए हैं, पढ़े हैं, जो कि फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड है और सिस्टम इंटरनेशनल के हवाले से इसमें 7 बेसिक क्वांटिटीज बताई जाती हैं। बट इसमें मैटर का भी इन्वॉल्वमेंट है भी। लेंथ, मास, टाइम, जो कि 3 बेसिक एंटिटीज हैं जिनको मेजर किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इन लास्ट मैटर। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको स्टैंडर्ड वे में हम मेजर करते थे। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड्स के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, एंड मैटर जो है उसको मोल के अंदर मेजर किया करते थे। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो उसके बेसिक रिप्रेजेंटेटिव जो सफिक्स है उसको इस तरह बताया गया है। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, जो इसका पार्ट बी है उसमें क्वांटिटी बताई गई है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल जो है वो रेडियंस के अंदर मेजर होता है, और सॉलिड एंगल जो होता है वो स्टेरेडियंस के अंदर मेजर किया जाता है। मुख्तलिफ तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व आपने की भी होगी कि एंगल की मेजरमेंट सॉलिड स्टेट एंगल्स वगैरह की, उसके अंदर ये स्टेरेडियंस का यूनिट लिया जाता है। मैकेनिकल दीगर सब्जेक्ट्स के अंदर भी, इलेक्ट्रिकल के लिहाज से भी इसको बताया जाता है, और ये ड्राइव एंटिटीज हैं। फर्दर इसके अलावा भी जो एंटिटीज हैं जो हमें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, उनमें ये ड्राइव एंटिटीज हैं। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, इन सब के इनके साथ ही साथ इनके यूनिट्स भी डिफाइन हैं यहाँ पे। जैसे एरिया को मीटर स्क्वायर के अंदर मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब के अंदर मेजर करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, फोर्स मेजरमेंट, प्रेशर, टॉर्क, मोमेंटम, movement of inertia, kinetic velocity, viscosity, sorry, dynamic viscosity, work energy, heat, specific heat, power. So these are the fundamental and the drive entities which are here. We all know about these concepts. तकरीबन इंटर तक ये एंटिटीज तो वैसे भी पढ़ाई जाती हैं, बाकी बेसिक इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर भी इन्हें बताया जाता है, और इनकी रिप्रेजेंटेटिव एंटिटीज के साथ इनके यूनिट्स भी डिफाइन किए जाते हैं। फर्दर अगली स्लाइड में हम मेजरमेंट ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे कि मेजरमेंट की एप्लीकेशंस क्या है। प्रेजेंट डे एप्लीकेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर एरियाज। नंबर 1 दैट इज रेगुलेटिंग ट्रेड। तो ट्रेड को रेगुलेट करने के हवाले से यहाँ पे बात होगी। अब अप्लाइंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर फिजिकल क्वांटिटीज such as length, volume, mass in terms of standard units। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर
इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई किए जाते थे उन फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के हवाले से जो कि रिलेटेड टू द लेंथ, मास और वॉल्यूम के हवाले से हैं, और उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स भी फर्दर सिस्टम इंटरनेशनल में डिफाइन किए गए। अभी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर जो डिफाइन किए गए हैं ये सिर्फ ऐसा यूनिट ही नहीं थे, बल्कि सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम भी थे, जिनके अंदर मुख्तलिफ तरह के फंडामेंटल एंटिटीज को फुट पाउंड्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता था। टाइम जो है वो सेकंड्स में लिया जाता था, लेंथ फिर उस हिसाब से ली जाती थी। तो हर तरह के सिस्टम्स होते हैं, लेकिन उनमें तीन बेसिक सिस्टम्स थे जो कि सीजीएस, एमकेएस और लास्ट में मॉडर्न से लेके अब तक जो चल रहा है वो सिस्टम इंटरनेशनल है, ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम। Measurement has wide area of application throughout the time, and it is mostly used in daily life practices as well. So further, monitoring the function. This is the second category to regulate after the regulate trade. That is the use of measuring instruments to provide information that enables human being to take some prescribed action accordingly. It might be used to control some industrial operation or processes. For the example, in a chemical process, for instance, a progress of chemical reaction is indicated by the measurement of temperature and pressure at various points, and such measurement allows the operator to take correct decisions regarding the electrical supply to heaters, cooling waters flows and valve position. अब ये केमिकल प्रोसेस में बताया गया है कि उसके इंस्टेंट्स के ऊपर कि उसकी एक प्रोग्रेस चल रही है केमिकल रिएक्शन के हवाले से, और इसमें जो मुख्तलिफ तरह के सिनेरियोज ऑफ मीडियम्स हैं इनको मेजर करने के लिए, उनकी मेजरमेंट के लिए प्रिसिशन के साथ उसमें हीटिंग एलिमेंट्स भी है, उसमें कूलिंग वाटर के हैं और प्रोसेस भी हैं, और वॉल्व कंट्रोलिंग ऑफ पोजीशंस के मैकेनिज्म को मेजरमेंट करने के लिए डिवाइसेस भी इंस्टॉल की गई हैं। तो फंक्शनैलिटी की मॉनिटरिंग के लिए भी डिवाइसेस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि उनके मीडियम की सही मायनों में मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ मेजरमेंट की जा सके। पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें अगर आप देखें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी सिस्टम का। सिस्टम दो तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम या अनकंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जो कि सिनेरियो बेस्ड ऑपरेट तो होते हैं, लेकिन उनमें कंट्रोलेबल फिनोमेना नहीं होता। कंट्रोलेबल फिनोमेना सिर्फ उन सिस्टम्स में होता है जिनमें फीडबैक लगा हुआ होता है। तो इसमें आउटपुट का रिस्पॉन्स हम फीडबैक करके प्रोवाइड करा जाता है सिस्टम को, ताकि इसको रीडिफाइन किया जा सके कंट्रोलेबल फिनोमेना के अंदर। उस मकसद के लिए इसमें कंट्रोलेबल एस्पेक्ट के लिए फीडबैक सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि सिस्टम कंट्रोल हो सके। ऑटोमेटिक फीडबैक सिस्टम भी होते हैं और मैनुअल फीडबैक भी नॉर्मली उसमें होते हैं, लेकिन फीडबैक लगाने का मकसद ये होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो सके। फर्दर, ओपन सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो जस्ट उनमें इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, उनमें एक सिस्टम होता है जो कि प्रोसेस को चलाता है, इटसेल्फ एक प्रोसेस होता है वो, और उसके बाद आउटपुट परफॉर्म हो जाता है। ये सिनेरियो है एक ओपन सिस्टम का, उसमें फीडबैक नहीं होता, ये वाला जो लूप है ये उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होता, नहीं किया जाता। तो वो एक ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्ट इफेक्टिव आप कह सकते हैं उसे, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, कंट्रोलेबल फिनोमेना नहीं होता, तो वो ज़्यादा कॉस्टली सिस्टम नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है वो कॉस्टली होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और उसमें जो आउटपुट है वो रिस्पॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से। तो ये सिस्टम की इनकॉर्पोरेट करने की दो टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई हैं, ओपन सिस्टम के हवाले से और क्लोज सिस्टम के हवाले से। तो रेफरेंस वैल्यू जो है यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं यूजर डिफाइन, और उसके बाद जो है कंपैरेटर वाली ये लूप फीडबैक को मैं लास्ट में कवर करूंगा, और एरर को भी। तो सिस्टम को रेफरेंस वैल्यू प्रोवाइड आप कर देते हैं, और उसके बाद लेट्स से एक प्रोसेस है वो यानी हीटर, उसको ऑन करते हैं जो कि टेम्परेचर मेजर करता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करता है एक रूम को। रूम का जो टेम्परेचर है फर्दर टेम्परेचर सेंसर के जरिए से उसको सेंस करने के लिए एक मेजरिंग डिवाइस लगी हुई होती है जो टेम्परेचर
of the room by taken by this loop and providing again in this way. This is the feedback of loop that is provide room of temperature at the kind from this kind of loop in a system. अब यहाँ पे होता ये है कि सिस्टम के अंदर एक एरर सिग्नल जनरेट होता है, वो इसके समर, ये समर होता है, जैसे कंपैरेटर कह लें, जो कंपेयर करता है रेफरेंस वैल्यू और उस वैल्यू को जो कि रूम के टेम्परेचर की यहाँ पे आ रही होती है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है, दैट डिफरेंस इज दी रेफरेंस वैल्यू जो यूजर डिफाइन है, और टी ए इज दी गेटिंग वैल्यू विच वी गेट फ्रॉम रूम टेम्परेचर। इन दोनों के डिफरेंस के नतीजे में एरर सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और इस एरर सिग्नल को ओवरकम करने के लिए हीटर उतना ही ज्यादा कम या ज्यादा किया जाता है, जिसके नतीजे में रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल लूप के लिहाज से है, फीडबैक के लिहाज से है, जिसमें हमें एक रूम का टेम्परेचर कंट्रोलेबल एस्पेक्ट में इस तरीके से मेंटेन होता हुआ नजर आएगा। एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, 5 एलिमेंट्स ऑफ अ मेजरमेंट सिस्टम, जिसमें प्राइमरी सेंसर एक लगा हुआ होता है, वेरिएबल कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट, सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, सिग्नल ट्रांसमिशन एलिमेंट्स, सिग्नल प्रेजेंटेशन या रिकॉर्डिंग यूनिट्स। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि लगे हुए होते हैं सिस्टम के मेजरमेंट के हवाले से, और बेसिक एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, उसके नतीजे में हमें रिस्पॉन्सेस मिल रहे होते हैं। अब ये भी सिस्टम का फ्लो है, ये ओपन लूप सिस्टम नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का रिस्पॉन्स जनरेट करने का तरीका है। मेजरमेंट वेरिएबल, मेजरमेंट के अंदर जिस भी वेरिएबल या सिनेरियो का आप मेजरमेंट करते हैं वो किसी फिजिकल फिनोमेना की होती है, सबसे पहले तो ध्यान में रखें। वो फिजिकल फिनोमेना को सेंस करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है सेंसर, जो कि एक फिजिकल फिनोमेना को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सेंसर। आफ्टर दैट, that particular signal is generated by the sensor getting or provided to the variable conversion elements, जो कि सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंपैटिबल बनाया जाता है सिग्नल प्रोसेसिंग फुलफिल करने के लिए। तो इस वाले ब्लॉक के अंदर ये चीज फुलफिल होती है। आफ्टर दैट, सिग्नल प्रोसेसिंग जो ब्लॉक है इसके अंदर सिग्नल इन होता है, और वो प्रोसेसर को प्रोवाइड किया जाता है ताकि सिग्नल की प्रोसेसिंग हो सके और डेटा को एलोकेट किया जा सके, मेमोरी एक्विजिशन हो सके, वो सारा काम यहाँ पे होता है। उसके बाद आउटपुट मेजरमेंट होती है, एंड देन सिग्नल ट्रांसमिशन इस रास्ते से होती हुई गुजरते हुए अगले ब्लॉक तक जाती है, जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन का है। यहाँ तक आने के बाद जो है यूज ऑफ मेजरमेंट और रिमोट पॉइंट, जो कि फर्दर अगला ब्लॉक है उसमें कवर करता है। आफ्टर दैट, सिग्नल प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग। प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि सिग्नल किस नेचर का है उसको दिखाया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है अगर रिकॉर्डिंग नेसेसरी है। रिकॉर्डिंग से मुराद उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसकी लॉगिंग करना कि सिग्नल कितनी नेचर का है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसमें एरर है नहीं है या नॉइज है, और ओरिजिनलिटी सिग्नल की क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफिल होती हैं। उसके बाद आउटपुट डिस्प्ले रिकॉर्ड यहाँ पर होता है, और उसके नतीजे में ये चीज़ फुलफिल होती है, जो भी आउटपुट होता है वो डिस्प्ले में आ जाता है, मीटर में आ जाता है एज अ मेजरिंग डिवाइसेस के तौर पे। आफ्टर दैट कुछ सेंसर्स की बात करेंगे जो कि प्राइमरी सेंसर्स हैं। यहाँ पर एक मैंने पिक्चर भी रिप्रेजेंट की है, जिसके नतीजे में आप ये देख सकते हैं कुछ सेंसर हैं जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर, गैस सेंसर, कलर सेंसर, पीआईआर सेंसर, एक्सेलरोमीटर, पोटेंशियोमीटर, आईआर सेंसर, फ्लेक्स सेंसर, एलडीआर, थर्मिस्टर, रेन सेंसर, हॉल सेंसर, माइक्रोफोन। ये भी एक सेंसर है जो कि फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। LM35, फोटोडायोड, आईआर रिसीवर एंड आईआर ट्रांसमीटर। इसी तरीके के ये इलेक्ट्रिकल सेंसर्स हैं। इस तरह मैकेनिकल सेंसर्स भी होते हैं जो कि मैकेनिकल फिनोमेना को लेकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस उसके बाद फुलफिल होते हैं, उनकी मेजरमेंट होती है, डेटा एक्विजिशन होती है। तो प्राइमरी सेंसर वो सेंसर है जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे लगा हुआ होता है, द फर्स्ट एलिमेंट इन एनी मेजरमेंट सिस्टम। दिस गिव्स एन आउटपुट दैट इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट अप्लाइड टू इट। और सेंसर के जरिए सिस्टम को इनपुट
प्रोवाइड किया जाता है एंड देन उसके नतीजे में सेंसर अपना आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग प्रीवियस स्लाइड में ये बात डिस्कस की थी। फॉर मोस्ट बट नॉट ऑल सेंसर्स दिस फंक्शन, हर तरह तकरीबन सेंसर ऐसे ही काम करते हैं। दिस फंक्शन इज लीस्ट अप्रोक्सीमेटली लीनियर। लीनियर उन पोजिशन या कंडीशन को कहा जाता है जिनके अंदर इनपुट डिफाइन किया जाता है और उसके नतीजे में आउटपुट भी उसी एम्पलीट्यूड उसी नेचर का प्रोड्यूस होता है, और जितना हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इस कंडीशन को लीनियर कंडीशन कहा जाता है। और नॉन लीनियर कंडीशन किसे कहते हैं? नॉन लीनियर कंडीशंस का मतलब ये होता है कि सिस्टम का इनपुट प्रोवाइड किया लेकिन उसके नतीजे में आउटपुट की जो नेचर है वो ज्यादा अगर आ रही है या फिर इनपुट के रेशो के मुकाबले में आउटपुट कम आ रही है, तो इस नेचर को नॉन लीनियर कहा जाता है। बट अगर नॉर्मली सारे सेंसर्स लीनियर नेचर के ही होते हैं और उसके नतीजे में आउटपुट परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल, थर्मोकपल एंड स्ट्रेन गेज। थर्मोकपल और स्ट्रेन गेज इस तरह के ये टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर्स हैं जो ऐसे ही ये काम करते हैं। थर्मोकपल है वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर को गेट करता है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिकली सिग्नल आगे प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से स्ट्रेन गेज है वो प्रेशर को मेजर करता है और उसका इलेक्ट्रिकली सिग्नल आगे प्रोवाइड करता है सिस्टम को, किसी डिवाइस को, जिसके नतीजे में वो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। फर्दर इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट्स के हवाले से है। वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट आर नीडेड वर where the output variable of primary transducer is an inconvenient form and has to be converted to a more convenient form. As an example, the displacement measurement strain gauge has an output in the form of varying resistance. तो displacement measurement strain gauge के नतीजे में जब हम ले रहे होते हैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के नतीजे में जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म के औज़ान होते हैं वजन रखने वाले, डिजिटल जो बैलेंस होते हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ तरह का बैलेंस रखा जाता है, और जो वो स्केल ऑफ बैलेंस होते हैं वो वजन ये बताते हैं कि इस वक्त इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और वो इलेक्ट्रिकली सिग्नल प्रोड्यूस करके इक्विवेलेंट टू स्केलिंग के नतीजे में बता रहा होता है कि इस वक्त कितना वेट इसमें अप्लाई हुआ है। तो वेरिंग ऑफ रेजिस्टेंस के नतीजे में ये काम हो रहा होता है, यानी मुख्तलिफ तरह की आप वेट उस पर रखते जाएंगे, उनकी मुख्तलिफ तरह की रीडिंग्स और वैल्यू आती जाएंगी मुख्तलिफ रेजिस्टेंस के लिहाज से। इट इज कन्वर्टेड टू चेंज इन वोल्टेज बाय द ब्रिज सर्किट। अब इसमें ब्रिज सर्किट कंपैटिबिलिटी के मुताबिक लगा हुआ होता है जो कि एक अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के वेरी होने के नतीजे में ब्रिज में अनबैलेंसिंग होती है और वही आउटपुट परफॉर्म करता है। फर्दर आज की डिस्कशन लेक्चर के हवाले से हम यहीं तक करेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट to continue the same session of lecture 1 regarding instrumentation and measurement। आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।